So today we're going to start a new chapter, Mass Struggle for an Education. यानी पढ़ाई के लिए मैंने कितना स्ट्रगल किया और क्या क्या स्ट्रगल किया वो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. One day while at work in the coal mine, I happened to overhear two miners speaking about a great school for colored people everywhere in Virginia. This was the first time that I had ever heard anything about any kind of school or college that was more pretentious than the little colored school in our town. तो मतलब जैसे मैंने सुना कि कलर स्कूल होगा, क्योंकि पहले क्या था, बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट चीजें होती थी. तो ये चीज बहुत ही अलग थी कि हमारे टाउन में क्या होगा, कलरफुल स्कूल्स होंगे, तो बहुत ही छोटे छोटे. As we went on describing the school, it seemed to me as it must be the greatest place on the earth. तो जब मैंने इसके बारे में सुना तो मुझे ये लगा कि पूरी ही अर्थ पे ये बहुत ही अच्छी चीज, यानी सबसे ही अच्छी चीज है. कौन सी? ब्यूटीफुल, कलरफुल, and small little beautiful schools. Not even heaven presented more affections for me that time that did the Hampton Normal and Agricultural Institute in Virginia about which these men were talking. तो जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे मुझे सबसे अच्छा वही लगता था, और उनके अलावा मुझे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आता. I resolved at once to school to go to that school, although I had no idea where that was or how many miles away or how I was going to reach it. I was on fire constantly with one ambition, and that was go to hunt. This thought was me day and night. तो मुझे वही चीज अच्छी लगती थी कि कैसे क्या लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, और मैं दिन रात से किसी के बारे में सोचा किया करता था. In the fall of 1872, I determined to make an effort to get there. और 1872 में मैंने बहुत मतलब पूरा डिटर्मिनेशन, पूरा अपना फोकस उसकी साइड किया, और मैंने बहुत एफर्ट किए ताकि मैं वहां तक पहुंच सकूं. My mother was troubled with a great fear that I was starting out in wild goose chase. तो इस बात से मेरी मम्मी घबराती थी कि मैंने कुछ अलग ही करने की सोची. At any rate, I got only a half-hearted consent from her that I might start. तो उनसे मुझे हाफ ही कंसेंट मिला था, मतलब पूरी तरीके से उन्होंने हाँ नहीं बोला था, पर मुझे तो जाना था. I had very little money with which I was to buy clothes and pay my traveling expenses. तो मेरे पास बहुत ही कम पैसे थे जिसमें मुझे अपने कपड़े भी खरीदने थे और अपने ट्रैवल का खर्चा भी खुद ही उठाना था. My brother John helped me all that he could not. Of course, that was not a great deal. तो मेरे भाई ने मेरी बहुत हेल्प करी, पर उससे भी इतना कुछ पाया पर का फायदा नहीं हुआ. Finally, the great day came and I started for Hampton. फाइनली वो दिन आता है, मैं हैम्पटन के लिए निकलता हूँ. I had only a small cheap satchel that contained the few articles of clothing I could get. तो मैं बहुत ही सस्ते से पुराने से कपड़े लेकर जाता हूँ. My mother at the time was rather weak and broken in health. तो उस समय मेरी मम्मा की हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं थी, वो भी बहुत ज़्यादा वीक थी. I hadn't expected to see her again and thus our parting was all the more sad. तो मैं उनको और ज़्यादा नहीं देख सकता था, मतलब अब मैं दूर जाऊंगा तो ये मेरे लिए बहुत ही बुरी चीज़ थी कि अब हम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे. She, however, was very brave to pass through it all. और वो इतनी ब्रेव थी कि उन्होंने मतलब मुझे रोका नहीं और मुझे जाने दिया. The distance from Mardin to Hampton is about 800 kilometers. By walking, begging rides, both in wagons and in cars in some way after a number of days, I reached the city of Richmond, Virginia, about 82 miles from Hampton. When I reached there, tired, hungry, and dirty, it was late in the night. So, मैल्डन से हैम्पटन तक का डिस्टेंस था 800 किलोमीटर का. वहां तक हमें रिचमंड तक जाना था. फिर वहां से जो हैम्पटन था वो थोड़ी ही दूर था, यानी 82 माइल्स का. तो पर जब तक मैं वहां पहुंचा रात हो चुकी थी, मैं पूरी तरीके से थक गया था, बहुत ही ज्यादा भूख भी लग रही थी, और पूरा ही मतलब जो कपड़े वगैरह थे वो भी पूरी तरीके से गंदे हो गए. I had never been in a large city and this weather I would think myself. तो इतनी बिग सिटी में मैं अपनी लाइफ में अब से पहले नहीं आया था. When I reached Richmond, I was completely out of money. पर जैसे ही मैं वहां तक जैसे तैसे पहुंच तो जाता हूँ, तब पहुंचते ही मेरे पास कोई भी मनी नहीं बचता. I had not a single acquaintance in the place and being unused to city was, I did not know where to go. मेरे पास एक सिंगल पैसा भी नहीं बचता और मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा. I asked at several places for lodging, but they all wanted money, and that was what I did not have. Not knowing what to do, I walked the streets. तो मैं किसी से कुछ भी पूछता था हेल्प के लिए
तो उसके लिए वो पैसे मांगते थे और मेरे पास पैसे होते तो मैं क्या ही करता, मतलब पैसे चाहिए थे तो पैसे ही तो नहीं थे मेरे पास। तो फिर मैंने क्या किया, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मैं इधर-उधर ऐसे ही स्ट्रीट्स पर घूमता रहा। आई मस्ट हैव वॉक्ड द स्ट्रीट्स टिल आफ्टर मिडनाइट। वैसे ही रात हो जाती है, मिडनाइट बिल्कुल 12-1 बजे का टाइम हो जाता है। वैसे ही घूमता रहता हूँ। एट लास्ट आई बिकेम सो एक्सॉस्टेड दैट आई कुड नॉट वॉक नो लॉन्गर। आई वाज हंग्री, आई वाज एवरीथिंग बट नॉट डिस्करेज्ड। तो मेरे पास जाकर मैं एक टाइम ऐसा आता है, मैं पूरी तरीके से थक जाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा मैं थक जाता हूँ, मुझे भूख लग रही होती है, मैं टायर्ड फील करता हूँ, मुझे सब कुछ हो रहा था पर मैं डिस्करेज नहीं था, यानी मैं बस हार नहीं मान रहा था, उसके अलावा मुझे सब कुछ हो रहा था। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉशन, I came upon a portion of a street where the broad sidewalk was considerably elevated. तो मैं ऐसे ही जब बहुत ज़्यादा थक गया तो मैं ऐसे ही साइड में एकदम मुझे एक जगह दिखाई देती है, वहाँ पर मैं बैठ जाता हूँ। I waited for a few minutes till I was sure that no passerby could see me and then crept under the sidewalk and lay for the night on the ground with a satchel of clothes as a pillow. Nearly all night I can hear the tramp of feet over my head. तो मैंने सोचा कि जब मुझे लोगों की आवाजाही बंद हो जाएगी तो मैं जो अपने कपड़े लेकर आया हूँ उसी की पिलो बनाकर यहीं पर लेट जाऊंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। पूरे ही रात मुझे किसी न किसी की आवाज आती रही। The next morning I found myself somewhat refreshed, but I was extremely hungry. तो सुबह मैं फ्रेश तो हो जाता हूँ सोकर, पर मैं भूखा था, मैंने कुछ नहीं खाया था। As soon as it became light enough for me to see my surroundings, I noticed that I was near a large ship. तो मैं देखता हूँ मेरे आसपास मुझे एक शिप दिखाई देती है। It seemed to be uploading cargo of big iron. वो क्या लेकर जा रही थी? Big iron को। I went at once to the vessel in order to get money for food. तो मैं वहाँ से कुछ पैसे लेने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं उनसे कुछ खा सकूँ। The captain, a white man who seemed to be kind-hearted, consented. तो जो कैप्टन थे उन्होंने एग्री करा, यानी वो बहुत अच्छे लग रहे थे, वो मान गए। आई वर्क लॉन्ग इनफ टू अर्न मनी फॉर माई ब्रेकफास्ट एंड इट सीम्स टू मी एज आई रिमेंबर इट नाउ टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट आई हैव एवर ईटन। तो मैंने वहाँ पे काम करता हूँ जिसके मुझे पैसे मिल जाते हैं और फिर उससे मैं खाना खाता हूँ, तो वो मेरी लाइफ का पक्का बेस्ट खाना था। देखो अगर हमें नॉर्मली खाना मिलेगा तो हम उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, और देखो उसने कितना हार्ड वर्क किया, खाने के लिए तरस गया, तो वो खाना उसे उतना अच्छा लग रहा था, यानी अब तक का बेस्ट। माई वर्क प्लीज द कैप्टन सो वेल दैट ही टोल्ड मी दैट आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर अ स्मॉल अमाउंट पर डे। तो वो मान जाते हैं, वो बोलते हैं कि मैं थोड़े टाइम के लिए वहां पर काम रोज कर सकता हूँ। दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, और मैं बहुत खुश हो गया ये सुनकर, मैं करता। आई कंटिन्यू वर्किंग ऑन दिस वेसल फॉर अ नंबर ऑफ डेज, और कुछ समय तक मैंने वहां पर रोज काम किया। After buying food with my small wages, there was not much left to pay my way to Hampton. तो जो मुझे पैसे मिलते थे थोड़े बहुत वो मेरे खाने में ही खर्च हो जाते थे और मैं हैम्पटन तक नहीं जा पाती। In order to economize in every possible way, I continued to sleep under the sidewalk. तो मैंने हर कोशिश करी पर मैं वहीं पर ही सोने लगा। When I had saved enough money to reach Hampton, I thanked the captain for the vessel for his kindness and started again. तो जब मैंने थोड़ा थोड़ा करके सेव कर लिया, मेरे पास पैसे हो गए, तो मैं कैप्टन को थैंक यू बोलकर हैम्पटन के लिए निकल जाता हूँ। Without my usual occurrence, I reached the Hampton with surplus of exactly 50 cents of begin my education. मैं वहाँ पहुँचता हूँ अपनी एजुकेशन स्टार्ट करने के लिए। The first sight of the large three-story brick school building seemed to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place. The sight of it seemed to give me new life. तो जब मैं पहुंचता हूँ मुझे रिवॉर्ड दिया जाता है कि मैं इतनी मेहनत करके यहाँ से पढ़ने के लिए आया हूँ, और मैं पापा मेरी एक न्यू ही जर्नी स्टार्ट होने वाली थी। As soon as possible after reaching the ground of the Hampton Institute, I presented myself before the head teacher for assignment to a class. Having been so long without proper food, bath, or a change of clothing, I did not, of course, make a favorable impression upon her. पर जैसे कि मैं गया, बहुत मुश्किल से पहुंचा, तो मेरा जो मतलब लुक था देखने का वो इतना अच्छा नहीं था, मैं उनको इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाया। I could see at once that there were doubts in her mind about the wisdom of admitting me as a student. तो मुझे पता है उन्होंने मुझे देखकर ऐसा लगा होगा, मतलब वो मुझे मान ही नहीं पा रहे होंगे कि ये कोई स्टूडेंट है और ये यहाँ पर पढ़ने आ रहा है। क्योंकि बच्चे कैसे जाते हैं, बिल्कुल अच्छे से ड्रेसअप होकर स्कूल में पढ़ने तो ऐसे ही जाते हैं, और वो बेचारा जैसे तैसे तो कर कर यहाँ पे पहुंचा,
और बिल्कुल ही हालत ऐसी हो गई थी, बहुत ही बुरी। For some time she did not refuse to admit me, neither did she decided in my favor. तो ना तो वो मुझे स्टूडेंट मानने के लिए रेडी थी और ना ही वो मेरे फेवर लेने के लिए रेडी थी। I continued to linger about her and to impress her in all ways I could with my worthiness. तो मैंने उनको बहुत ही मनाने की कोशिश करी, जितने मैं कर सकता था मैंने किया। In the meantime, I saw her admitting other students, and that added and greatly to my discomfort. I felt deep down in my heart that I could do as well as they if only I could get a chance to show what was in me. मैंने बहुत कोशिश करी पर वो मुझे छोड़कर बाकी सब बच्चों पर ध्यान दे रही थी और ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं अंदर से बहुत ही ज्यादा टूट गया था। After some hours had passed, the head teacher said to me that joining recitation rooms needs sweeping. Take the broom and swept it. तो जब टीचर जा रहे थे वो बोलती है ये रूम गंदा हो गया है कि झाड़ू उठाओ और यहाँ पे सफाई करनी स्टार्ट कर दो। It occurred to me at once that here was my chance. Never did I receive an order with more delight. तो ये मेरा वो उन्होंने इस चीज को बुरी तरीके से लिया, अच्छा लिया कि उन्होंने कुछ अच्छे से बोला है मुझे और मैं ये काम करूंगा। I swept the recitation room 3 times. तो मैंने 3 बार उसकी सफाई करी। Then I got a dusting cloth and dusted it 4 times. फिर मुझे कपड़ा दिया गया, मैंने उससे उसकी डस्टिंग वगैरह करी। All the woodwork around the walls, every bench, table and desk, I went over 4 times with the dusting cloth. तो मैंने अच्छे से सभी वॉल्स, सभी डोर्स और जो भी डेस्क और टेबल थे सभी मैंने अच्छे से काम किया। Besides, every piece of furniture had been moved and every closet and corner in the room had been thoroughly cleaned. मैंने सब चेयर इधर-उधर करके अच्छे से सफाई की, एक-एक कोना बिल्कुल अच्छे से चमक रहा था। I have the feeling in large measure that my future depend on the impression I made upon the teacher in cleaning that room. तो मैंने ये सोचा हुआ था कि अगर मैं अच्छे से काम करूंगा तो ये अच्छा इंप्रेशन टीचर पर पड़ेगा और वो मुझे इसकी शाबाशी लेगी। आई रिपोर्टेड टू द हेड टीचर व्हेन आई वाज थ्रू। तो फिर जब मेरा काम फिनिश हो जाता है मैं हेड टीचर के पास जाता हूँ। शी वाज अ यंकी वुमन हू न्यू जस्ट वेयर टू लुक फॉर हर। तो वो ऐसी विलन की उन्हें पता था कि सिर पुणे गंदगी कहाँ देखने को मिलेगी। शी वेंट इनटू द रूम एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर एंड क्लोजेट्स। तो उन्होंने फ्लोर्स वगैरह को अच्छे से चेक किया। देन शी टुक हर हैंकरचीफ एंड रब्ड इट ऑन द बेंच। फिर उन्होंने हैंकी लिया और बेंचेस पर ऐसे रब करके देखा। When she was unable to find the one bit of dirt on the floor or a particle of dust on any furniture, she quietly remarked, I guess you can enter this institute. तो जब वो चेक कर लेती हैं, उनको कहीं भी गंदा नहीं दिखाई देता, तो वो बोलती हैं, वो खुश हो जाती हैं, बोलती हैं कि तुम इस इंस्टीट्यूट में एंटर कर सकते हो। I was the happiest soul on the earth. उस वक्त तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। The sweeping of that one room was my college examination. सिर्फ वो उस रूम की सफाई करना यही मेरा क्या था एग्जाम था और मैं उसके पास हो गया। I have passed several examinations since then, but I have always felt that this was the best one I had ever passed. तो मैंने बहुत सारी मुश्किलें झेली इस स्कूल में पढ़ने के लिए और ये वाला मेरे लिए बेस्ट था क्योंकि अब से मैं इस स्कूल में पढ़ाई कर सकता था और जो भी मैं इतनी दिनों से डिफिकल्टीज हो रही थी वो आज खत्म हो। अब फाइनल जो मेरा सपना था वो पूरा होगा। ये देखो बच्चों उसने पढ़ने के लिए कितना हार्ड वर्क किया, तो हमें भी क्या करना है, हमें तो चीजें आसानी से मिल गई है तो उसका हमें फायदा उठाना चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।